کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں ایران ہوں، میں فارس ہوں۔ ہم ایک قدیم قوم ہیں۔ اکثر لوگوں کی سوچ کے برعکس ہم عرب نہیں ہیں۔ صدیوں تک ایران کو فارس کے نام سے جانا جاتا رہا۔ ہم دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنے، مگر ہماری داستان کے کچھ قصے اکثر فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری عظمتیں یادداشتوں سے معدوم ہو چکی ہیں، پھر بھی بائبل مقدس کے انبیاء اور مصنفین جیسے کہ دانیال، یسایہ اور عزرا ہماری کہانی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ عبرانی بائبل فارس کو خدا کا چنیدہ کہتی ہے، خدا کا چنا ہوا اور تمام لوگوں کے لیے باعث برکت۔ عبرانی بائبل مقدس میں نبوتیں، لوگ اور واقعات کے ساتھ فارس کے سلاطین کا بھی تذکرہ ہے۔ طویل جنگوں، لڑائیوں اور شاہی فرمانوں نے دنیا کو بدل ڈالا، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کیا آج بھی بہت سارے لوگوں کو فارس کی تاریخ وتیرہ حیرت میں ڈالتی ہے؟ کیا یہ یہودی لوگ ہی تھے جو مملکت فارس کے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک تھے؟ اور شاید ان سب میں حیران کن بات یہ ہے کہ کیسے عبرانی بائبل تفصیلاً بیان کرتی ہے کہ کیسے فارس کے یہودی لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیے گئے خدا تعالیٰ کے حیرت انگیز وعدے کی تکمیل میں مدد کی۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سو تو باعث سے برکت ہوا۔ عبرانی بائبل مقدس کے مطابق حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ فارس اور یہودی تاریخوں کو الگ الگ ہونا ہی تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے دلچسپ باتوں میں سے ایک فارس سلطنت کی تاریخ ہے۔ اس کا تعلق دوسری تہذیبوں سے جڑا ہوا ہے۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے واقعات اور فارس کی تاریخ کے واقعات آپس میں بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اور مقامات ایسے ہیں جو کہ فارس کی تاریخ میں بھی بہت اہم ہیں اور بائبل میں بھی۔ میں نے قدیم تاریخ بشمول فارس کی تاریخ بہت طویل عرصے تک اپنے طالب علموں کو پڑھائی ہے۔ پھر میں نے آثار قدیمہ، یونانی اور عبرانی ذرائع کو جوڑا تاکہ ایک بیانیہ دے سکوں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ قدیم فارس کے لوگوں کا تعلق تھا یونانیوں سے اور عبرانیوں سے بھی۔ فارس کی سلطنت بلا شبہ دنیا کی تاریخ کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ فارس سے پہلے دنیا کی تاریخ نے کسی بھی سلطنت کو اتنے وسیع اور عریض پیمانے پر پھیلتے نہیں دیکھا، جس میں بحیرہ روم سے لے کر بحیرہ اسود بھی شامل تھا، اور پھر وادی سندھ بھی اسی قوت کے زیر اثر ہی تھی۔ فارس کی مملکت میں نہ صرف آج کا ایران شامل تھا، بلکہ عراق، افغانستان، پاکستان، ترکی، شام، اردن، اسرائیل، مصر اور بہت سارے ممالک۔ فارس کی مملکت میں پرسیپولس ایک عظیم شہر تھا۔ پرسیپلس واقعی ایک حیران کن نظارہ ہے، جس میں بہت سے کمپلیکسز ہیں، محلات ہیں، شائقین کے لیے ہالز ہیں اور بہت سی معاشرتی عمارتیں ہیں یہاں۔ اور یہ قلعے اور تمام دیگر عمارتیں صرف ایک ہی پلیٹ فارم پر بنائے گئے ہیں، اور انہیں پہاڑ کی نچلی ڈھلوان پر کاٹ کر کھود کر بنایا گیا ہے۔ اپاڈانا یعنی تماشائیوں کا ہال سب سے شاندار اور غیر معمولی عمارت ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری سلطنت سے کم و بیش 10,000 لوگوں کا مجمع وہاں جمع ہو سکتا تھا، اور اس کے زینوں میں بہت ہی شاندار مجسمہ سازی کے نمونے ملتے ہیں، جو یقیناً منظر کشی ہے ان وفود کی جو اقوام عالم سے شاہ فارس کے لیے تحفے لے کر آتے تھے۔
परसेपोलिस एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की बहुत सी तवारीख इकट्ठी होती हैं। फारस की सल्तनत को समझने के लिए बाइबल बहुत ही अहम जरिया है। इससे हम मखसूस लोगों के तनाजुर में फारस की सल्तनत को समझ सकते हैं। हालांकि ये कोई तारीखी जरिया नहीं है, एक लिहाज से हम तवारीख के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमें बहुत सी तारीखी मालूमात मिलती हैं। इसने एक बहुत ही अहम और बड़े जखीरे को संभाल रखा है, इसलिए ये बहुत अहम जरिया है सल्तनत फारस के मुताले का और इसके यहूदियों के साथ ताल्लुक का भी। ईरान और फारिस से मुतालिका बाइबल मुकद्दस में 240 हवाला जात हैं। इब्रानी बाइबल की 6 कुतुब में लफ्ज फारिस और फारसी लोगों का तस्करा 33 बार आया है। शाह खौरस, फारस का पहला शाह, उसका तस्करा 19 बार आया है। शाह फारस दारा का नाम 15 बार आया है। शाह फारस अक्सवेरियस का नाम 12 मर्तबा आया है। शाह फारस अर्तक्षता को 13 बार बयान किया गया। इसके अलावा दीगर फारसी लोगों और महल्लात का जिक्र 148 बार आया है। अक्सर लोग बशमूल बहुत से ईरानियों के इस बात से नावाकिफ हैं कि ईरान की तारीख और बाइबल मुकद्दस की तारीख एक दूसरे से बहुत तरह से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत अहम बात है। इससे पहले कि खुदा ताला हजरत इब्राहिम से वादा करते, उसे 1000 बरस का अरसा लगा, जो फारस की तारीख का अहाता करती है। यरूशलेम में रहते हुए जनाब यसाया नबी ने एक गैर मामूली पेशगोई की थी। ऐसी नबूवत जिसमें खास तौर पर पहले शाह फारिस खौरस का तस्करा किया गया, वो भी उसकी पैदाइश से कई बरस पहले। जनाब यसाया नबी 700 कबल मसीह में जिंदा थे और खौरस की मंजर आम पर आमद तकरीबन उनसे 150 साल बाद होती है। तो जनाब यसाया नबी ने बड़ी हैरान कुन पेशगोई की थी कि खुदा मुस्तकबिल के शाह फारिस खौरस को इस्तेमाल करेगा, जिसे खुदा ने ममसूख कहा। खुदावंद अपने ममसूख खौरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने जेर करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दरवाजों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ना हमवार जगहों को हमवार बना डालूंगा। मैंने अपने खादिम याकूब और अपने बरगजीदा इसराइल की खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया। मैंने तुझे एक लक़ब बख्शा, अगरचे तू मुझे नहीं जानता। ये जुमला यानी कि ममसूख होना बादशाहों से जुड़ा हुआ है और ये बहुत अहम है। खौरस और ममसूख, इससे पहले इसके पस मंजर में हमें कोई ऐसी रिवायत या रस्म नहीं मिलती है, इसलिए ये एक इस्तारा है कि ये वो आदमी है जिसे कि खुदा ने चुना है कि वो अपने किसी खास मंसूबे में इस आदमी से कोई खास काम लेगा। मुकद्दस किताब में ऐसा पहली बार होता है कि किसी गैर इसराइली को ममसू या खुदा का मसाशुदा कहकर पुकारा जाता है। यसाया में खौरस को कहा गया ना सिर्फ ममसूख बल्कि चरवाहा भी। अब चरवाहा एक ऐसा लक़ब है जो मशरिक के कदीम बादशाहों के लिए रिवायती तौर पर कई बार इस्तेमाल होता चला आया है। मैं खौरस के हक में कहता हूँ कि वो मेरा चरवाहा है और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा। और खुदा खौरस को अपना चरवाहा कहता है। इसकी वजह चरवाहे की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देखभाल करे, परवरिश करे, निगहबानी करे और खुराक दे। और खौरस ने यही किया। खौरस ने ये सब कुछ खुदा के मंसूबे के मुताबिक किया था, क्योंकि खुदा वादे की तकमील चाहता था। जनाब यसाया खौरस को समझते थे कि वो कोई ऐसा है जिसे चुना गया है रहनुमाई के लिए और अक़वाम आलम की बाकायदा क़यादत करने के लिए, जिसमें हत्ता कि उनके अपने लोग भी शामिल हैं, यानी यहूदी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो वादा 1000 बरस पहले अब्राहम से किया गया, उसकी तकमील में शाह खौरस मदद करेगा ताकि दुनिया के लिए बायसे बरकत हो। आज के ईरान में खौरस की कब्र तारीख में एक नुमाया मकाम रखती है। पसर गादरी की एक शानदार यादगार जो अब भी बरकरार है, वो खौरस की कब्र है, जिसे सफेद चूना पत्थर से तामीर किया गया और जो बुलंदी में तकरीबन 35 फुट है।
जब खौरस शाह फारस बना तो उनकी सल्तनत दुनिया की अजीम सल्तनत थी। उस वक्त उनका दारुल हुकूमत वहाँ था जहाँ आज का मौजूदा इराक है। इससे पहले 5000 कब्ल मसीह में बाबुल का शाही खानदान यहूदियों को फतह करके उन्हें जिला वतन करके बाबुल ले गया था, और वो लोग 539 कब्ल मसीह तक यानी खौरस के आने तक उनकी असीरी में ही रहे थे। इब्रानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसकी रूहानी वजूहात थीं कि क्यों यहूदी हजरत इब्राहिम की नस्ल बाबल की जिलावतनी में गए। अब्राहम की नस्ल इसराइल कौमों के लिए नूर बनने के लिए बुलाई गई थी, इसलिए उन्हें खुदा से इस अंदाज से मोहब्बत करनी थी और फर्मा बरदारी भी करनी थी कि खुदा अपनी बरकत को उन पर जाहिर करे, और फिर वो दुनिया की बाकी कौमें इसे देखेंगी और खींचेंगी इसकी तरफ और खुदा की तरफ रुजू लाएं। और इस तरीके से अहदे अतीक में खुदा के लोगों को दूसरे लोगों तक पहुंचना था। मगर यकीनन वो कहानी जो हमें पुराने अहदनामे में लोगों के बारे में मिलती है, बदकिस्मती से खुदा के लोग वो काम नहीं कर रहे थे और बल्कि रुकावट बन रहे थे वो कि लोग खींचे चले आए हमारे सच्चे खुदा की तरफ। जो यर्मिया नबी ने यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को सुनाया और कहा कि शाह यहूदा यूसिया बिन आमोन के 13वें बरस से आज तक ये 23 बरस खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल होता रहा, और मैं तुमको सुनाता और बर वक्त जताता रहा, पर तुमने ना सुना। और खुदावंद ने अपने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया। उन्होंने कहा कि तुम सब अपनी अपनी बुरी राह से और अपने बुरे कामों से बाज आओ और उस मुल्क में जो खुदावंद ने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया है बसो। इसलिए रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने मेरी बात ना सुनी, देखो मैं तमाम शमाली कबाइल को और अपने खिदमत गुजार शाह बाबुल नबुकदनज़र को बुला भेजूंगा, और ये कौमें 70 बरस तक शाह बाबुल की गुलामी करेंगी। जदीद बाबली बादशाहों में नबूकदनज़र एक अजीम बादशाह था जिसने हुक्मरानी शुरू की। हजरत दानियाल की किताब के पहले बाब के मुताबिक 605 कब्ल मसीह में तकरीबन नबूकदनज़र ने अपने पहले बरस में ही यरूशलेम पर हमला किया। इस हमले के बरक्स उसने जो दूसरा हमला 597 कब्ल मसीह में किया उसके मुसद्दिक़ा सबूत मिलते हैं, और 586 और 87 कब्ल मसीह के तीसरे हमले के भी। इस दौरानिये में उसने हैकल सुलेमानी को फिर से बनाया। दानियल और उसके दूसरे साथी नबूकदनज़र की जिलावतनी में शामिल थे। हजरत दानियाल नबी वाहिद 9 उम्र थे जब उन्हें बाबल में जिलावतन किया गया। हो सकता है कि हजरत दानियाल इस बात पर हैरान हुए हों कि हजरत इब्राहिम के साथ किए गए खुदा के वादे का क्या होगा जिससे दुनिया के लोगों को बरकत मिलेगी। सैकड़ों मील का फासला तय करने के बाद ये जिलावतनी 5 माह ले सकती थी। उन्होंने बैनुल अक़वामी तिजारत की शाहराह दमिश्क के माजी के शहर शुमाल की तरफ सफर किया, जो गालिबन जरखेज हिलाल के ऊपर है। दरियाए दजला और फरात का तास बाबुल के सिमत में है। हम बाबुल की नदियों पर बैठे और सियोन को याद करके रोए। वहां बैत के दरख्तों पर उनके वस्त में हमने अपनी सितारों को टांग दिया। बाबल में तकरीबन 70 साल असीरी के बाद बुजुर्ग नबी हजरत दानियल ने हजरत यर्मिया नबी के सहीफे का मुताला किया और यरूशलेम के बारे में गौर किया। मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। हजरत यर्मिया की यरूशलेम के बारे में पेशगोई ने हजरत दानियाल को उम्मीद बख्शी, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं।
बस हजरत दानियाल ने दुआ करनी शुरू की। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ऐ खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व आईन को तर्क किया है। और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। लेकिन कैसे? वतन वापसी कैसे मुमकिन होगी? क्योंकि बाबली हुकूमत की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इब्रानी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक शाह खौरस को ममसूह यानी खुदा का मसाशुदा कहा गया था, जो हर चीज को बदल डालेगा। खौरस एक बहुत कामयाब फौजी फातेह था जिसने अपनी छोटी सी सल्तनत का आगाज किया आज के जनूबी ईरान से और फिर तेजी से बढ़ाया मगरिब की तरफ जहां आज का तुर्की मौजूद है, और इसके साथ साथ वस्ती एशिया में बहुत सी फतुहात की यानी मेसोपोटामिया में, और बाबल फतह कर लिया जो कि सबसे अहम शहर था 539 कबल मसीह की उस तारीखी दुनिया में। बाबल की फतह के बाद खौरस ने एक फरमान जारी किया, वो फरमान जिसने मफ्तू लोगों के ऊपर हुक्मरानी करने के शाहों के अंदाज को बदल डाला। इस खारजा पॉलिसी ने नए दरीचे खोल दिए क्योंकि दुनिया को बरकत देने का खुदा का वादा पूरा होना था। कदीम आसार कदीमा के इल्म में मतन के लिहाज से सबसे बड़ी दरियाफ्त खौरस का सिलेंडर था। खौरस का सिलेंडर एक मिट्टी की बनी फुटबॉल की जितनी बड़ी चीज है जो 1870 में बाबल से मिला, और इसमें एक फरमान है जो कि शाह खौरस ने तब जारी किया था जब 538 या 539 कबल मसीह में उसने बाबल पर कब्जा किया। ये मिट्टी से बना ढोल की शक्ल का सिलेंडर है जिस पर अकादमी जबान में तहरीर है जो कदीम सामी जबान थी। इसकी दरियाफ्त का सेहरा हरमोंद रासिम नामी शख्स को जाता है जो ब्रिटिश म्यूजियम का मुलाजिम था। और हम जानते हैं कि फारस के लोगों ने खौरस की हुकूमत में कैदियों को वापस जाने की इजाजत दी, और ये असूरियों और बाबलियों की साबका हिकमत अमली से बहुत मुख्तलिफ था। यह खौरस के दौरे हुकूमत की तब्दीली थी जिन्होंने एक बड़ी आबादी को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया, मगर उन्हें वापस आने की इजाजत नहीं थी। बस साइरस सिलेंडर एक अहम मुसवदा है क्योंकि ये इस बात को जाहिर करता है कि कैसे फारसी लोग मकामी रस्म व रिवाज को अपनी तरफ मुतवज्जे करवाने में कामयाब हुए ताकि वो इक़्तिदार को उसूली तौर पर इखलाकी और समाजी मदद दे सकें। खौरस रिवायती अंदाज को इस्तेमाल करने में बड़ा कामयाब रहा था। इस किस्म का नविश्ता जो ऐलान करता था कि इसने बाबली देवताओं की इज्जत की और वो कैद किए हुए और जिलावतन किए हुए लोगों को वापस जाने की इजाजत देगा, और ये भी कि वो देवताओं को उनके असल मकाम पर बहाल करेगा। खौरस तारीख का पहला बादशाह था जिसने अपने मफ्तूर लोगों को ये इजाजत दी कि वो जिस तरह चाहें वो अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं। आज हम न्यूयॉर्क में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग में जाकर साइरस सिलेंडर की कॉपी देख सकते हैं जिसका असल खौरस सिलेंडर लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस इस बात का जिक्र करती है कि कैसे खौरस ने यहूदियों को इजाजत देता है कि वो अपने शहर यरूशलेम वापस चले जाएं और जाकर हैकल दोबारा तामीर कर लें, और ये एक शानदार और हैरान कुन खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। शाह फारस खौरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो उसका खुदा उसके साथ हुआ और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए और खुदावंदे इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। और खौरस बादशाह ने भी खुदा के घर के उन बर्तनों को निकलवाया जिनको नबुकदनजर यरूशलेम से ले आया था और अपने देवताओं के मंदिर में रखा था। इन्हीं को शाह फारस खौरस ने खजांची मित्रदात के हाथ से निकलवाया और उनको गिनकर यहूदा के अमीर शीस बजर को दिया। सोने और चांदी के कुल ज़रूफ 5400 थे। शीस बजर इन सबों को जब असीरी के लोग बाबल से यरूशलेम को पहुंचाए गए ले आया। सच ये है कि खुदा ईरान और फारिस को इस्तेमाल करता है ताकि बुनियादी तौर पर असीरा ने इसराइल का ख्याल रखा जाए।
किसी एक कौम को बरकत देने के लिए नहीं, बल्कि उस एक कौम के जरिए तमाम अक़वाम को बरकत देने के लिए। तमाम बनी नौ इंसान को ये एक याद रखने लायक बात है। हत्ता कि आज 21वीं सदी में भी ये बताया जाता है कि दुनिया की 70% आबादी ऐसे ममालिक में रहती है जहां उन्हें इबादत की शख्सी आज़ादी हासिल नहीं है। मगर ये खौरस जो अजीम शाह फारस था, हम देखते हैं कि बहुत खुले दिमाग का था और बर्दाश्त रखता था, जिसने अपने मफ्तूल लोगों को ये इजाजत दी थी कि वो खुदा की इबादत करें जिस तरह वो चाहते हैं। तो खौरस असल में एक ऐसा बादशाह था जिसने मजहब और इबादत की आजादी का आगाज किया, और हम ये बात कर रहे हैं 2500 साल पहले की। हजरत यसाया नबी ने खौरस को न सिर्फ खुदा का ममसूह कहा, बल्कि मुस्तकबिल के ममसूह के बारे में भी कहा, जो एक इंसान से बढ़कर होगा। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलिद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। कलाम फरमाता है कि उसकी बादशाहत एक अब्दी बादशाहत होगी। मुझसे इसका आगाज हो गया है। ये बेटा जो आने को है, बच्चा जो पैदा होने को है, और जो यसाया 7:14 के मुताबिक पैदा होगा, कंवारी से जो अमैनुअल कहलाएगा, यानी खुदा हमारे साथ। और ये बेटा अंबिया कराम की लंबी फहरिस्त में से एक नहीं होगा, बल्कि ये बेटा कादरे मुतलिक होगा, और वो अब्दी बादशाहत को कायम करेगा। खुदा ने शाह खौरस को इस्तेमाल किया और उससे जुड़े वाकयात को भी, और सरजमीन फारिस में मुस्तकबिल के आने वाले बादशाहों को भी, कि वो खुदा के हतमी वादे की तकमील को यकीनी बनाए कि एक ममसूह जमीन पर आने को है, यानी हजरत मसीह जरूर होंगे, और वो यकीनन दुनिया के लिए निजात दहिंदा बनकर आएंगे। ये जनाबे मसीह थे जिन्होंने अपना जिंदा रहने का मकसद बयान किया। चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। ये हजरत यसाया नबी ही थे जिन्होंने उनको खुदा का खातिम बनाया था, जो तमाम लोगों के लिए दुख उठाएगा और जान कुर्बान करेगा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। यही पैगाम हजरत अब्राहम को दिया गया, जो पूरी तारीख में इसी तरह यकसा रहा, बशमूल तमाम अक़वाम की मुदाखलत के, हत्ता के ईरानियों के भी। और ये पैगाम इसराइली नस्ल में जनाबे मसीह की शक्ल में तकमील को पहुंचा। ये खुदा का वादा था जो मुकम्मल हुआ। तमाम तारीख में उन्होंने लोगों के दिलों को तैयार किया, उनके लिए राह को हमवार किया, और अब वो कौम, फारसी कौम और अरब और इलामी और तुर्की और चाइनीज कौम भी, और तमाम अक़वाम आज के दौर में बाबरकत हैं। पैगाम बहुत सादा है कि जो वादा अब्राहम से किया गया था वो हर एक कबीले, हर कौम के लिए है। तो मसीह की मौत और कयामत के कुछ हफ्तों बाद जब आपके शागिर्द यरूशलेम में जमा हो रहे थे, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उन सब पर खुदा की रूह का नज़ुल हुआ, बाबरकत रूह का। नए अहदनामे के दौर में खुदा के रूह ने कलीसा को पैदा किया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि पूरी दुनिया से लोग वहां पर जमा थे ताकि यरूशलेम में यहूदियों की ईद फसा मना सकें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को महसूस नहीं किया कि पहले 3 लोगों का गिरोह, जो अमाल 2 बाब की 9 आयत में है, पार्थी, मादी और इलामी, ये सब लोग ईरान से थे। ईरान के लोग तब भी यरूशलेम में मौजूद थे, चाहे वो यहूदी थे जो फारस की सल्तनत में रहा करते थे, यानी कि असीरी के दौर के लोग, या फिर खौफे खुदा रखने वाले लोग जो हकीकी तौर पर खुदा पर ईमान ले आए थे क्योंकि उनका वास्ता यहूदी बरादरी से रहता था। वजह जो भी थी, ईरानी लोग वहां यरूशलेम में मौजूद थे। ईरानी लोग भी रूह पाक से भर गए थे
اور ہمارا ماننا ہے کہ ایرانی جب اپنے ملک میں واپس پہنچے تو وہ جناب مسیح کی خوشخبری کا پیغام ساتھ لے کر گئے تھے جو انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا۔ ہم سینکڑوں برس بعد کی کلیسیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایرانی ہی تھے جو مسیح کی خوشخبری کو چین تک لے کر گئے تھے شارۂ ریشم کے ذریعے۔ در حقیقت چین کے لوگ عیسائیت کو فارسی مذہب سمجھا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے انجیل کی منادی سنی فارسیوں سے، مسیح کے ماننے والے جو ایران میں رہتے تھے ان سے۔ تو میں اپنے آپ پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں یسوع کا ایک ایرانی پیروکار ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ خدا نے ایران کے لوگوں کو خاص طور پر استعمال کیا کہ وہ بہت سی قوموں کے لیے امید اور شفا کا باعث بنے۔ میرے خیال میں ایرانی قالین ایک خوبصورت علامت ہے کہ تاریخ میں خدا کیسے کام کرتا ہے، خدا ہماری زندگیوں میں کیسے کام کرتا ہے۔ جب آپ قالین پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک طرف سے بڑا کھردرا ہوتا ہے، اس کی گانٹھیں، اس کے دھاگے وغیرہ، یعنی قالین کی پچھلی سمت اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، پر ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے یہ قالین شاندار رنگوں اور ڈیزائن پر مشتمل ہوگا جس پر بہت سے خوبصورت رنگ اور علامتیں بکھری ہوں گی۔ میرے خیال میں ہمیں خدا کے کاموں کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہ تاریخ کے ہمارے نقطۂ نظر سے کچھ الجھا ہوا نظر آئے گا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا مقصد محض قوموں کو برکت دینا ہی ہے، اور اس خدا کا مقصد پوری دنیا میں سلامتی پھیلانا ہے، امن پھیلانا ہے، اور جناب مسیح کی بادشاہت قائم کرنا ہے۔ اور یہ لاجواب کہانی اسی کی خاطر بنائی جا رہی ہے۔ ایک دن یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک دن ہم اپنی زندگی میں خدا کے کام کی بزرگی اور عظمت دیکھیں گے، جس طرح سے ہم ایرانی قالین کو دیکھتے اور محسوس ہوتے ہیں۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.